Hello everyone, welcome to Maneuver Education. In this video, we are going to discuss the most important question from teaching aptitude for MH B.Ed CET examinations. So this is the part 4 of the video series. Further more parts will be coming up. So stay tuned on this channel and do like and subscribe this video. So let's start this session. Before that, here is the important information regarding our self-study program. So if you want to join us for self-study course, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes on pan India level and the counselor will guide you. In case if you want to join us through the website, I will give you the tour guide of the website about the B.Ed examination. So let's go to the website. So you have to go to the maneuveredu.com. Here you can see that B.Ed entrance examination, click on that. You will get the B.Ed CET examination, click on it and you will get about the live classes, that is कि 2025 MS CET B.Ed examination 2025-2026 के लिए H2C बैच भी लाइव है. You can avail any of the courses, that is self study programs are also available, that is कि self study course for 2026 as well as 2025. Sectional courses are also available, that is for English, general knowledge, teaching aptitude, mental ability, logical reasoning. ये सब क्या है आपको available है. Mock tests are available here, topic wise as well as full length mock test you can avail from the website. So each and everything available on the website. You can come to the website and avail these things. So let's start this session. And the first question is, what are the school related factors which influence a student adjustment in a school? तो ये स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करता है एडजस्टमेंट में, स्कूल में एडजस्ट करने में, किसी नए स्कूल में जाता है तो वो क्या 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 फैक्टर हो सकता है. सैलरी ऑफ अ टीचर, प्रॉपर ट्रेनिंग टू टीचर्स, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, पार्शियल स्कूल इन्वायरमेंट. एंड द करेक्ट आंसर इज proper training to teachers. So proper training to teachers is a key school related factors that influence student adjustment in a school. तो ये जो है आपको ट्रेनिंग पूरा होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए टीचर को किस तरह से आपको डील करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 क्या डिफाइन करता है. चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो किस चीज को डिफाइन करता है, क्या कहता है. प्रोहिबिट्स ऑल टाइप्स ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू 14 years of age of child, prohibits child labor in risk taking works only, prohibits child labor during school hours only, none of the above. And the correct answer is prohibits child labor in risk taking works only. तो जो भी risk taking works है वहाँ पे 14 years से old child जो है 14 ईयर से लोअर जो जिनका एज है वो वर्क नहीं कर सकते हैं हेल्थ सेफ्टी को लेकर. और मोरल ऑफ चिल्ड्रेन जो है यहाँ पर जैसे कि सिगरेट इंडस्ट्री है, अल्कोहल इंडस्ट्री है या फिर कोई यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स है वहाँ पे जो है बच्चे वर्क नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. तो टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन, टू डिक्टेट गुड नोट्स, provide required information related to the subjects, to develop thinking power of students. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एक टीचर का ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव. सो टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स. So developing thinking power of student is the main objective of teaching. The thinking is the higher cognitive functions that allow a student to produce innovative ideas by using images, symbols and language. Out of the box जो है, out of the box सोचने की जो है कैपेसिटी आती है स्टूडेंट में, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो डेवलप होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है. तो ये सारी चीजें जो है टीचर को इम्पार्ट करना होगा. मेन ऑब्जेक्टिव ये होनी चाहिए स्टूडेंट में ये आए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन फॉर. तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम का मतलब क्या है. एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज, इंगेजिंग द इंटायर क्लास. सो द करेक्ट आंसर इज एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस. So student-centered learning applies to many educational learning, teaching and support approaches that tackle individual students, group of students and a specific learning needs, interest, preference. ये सारी चीज जो है इसमें इंक्लूड होता है. तो आप इंडिविजुअली जो है आप उसको एड्रेस कर सकते हो. क्या कर सकते हो कि एक स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो उसको अलग तरह से डील कर सकते हो, दूसरे स्टूडेंट को अलग तरह से डील कर सकते हो. मतलब टोटली जो है वो स्टूडेंट पे बेस होगा ये क्लासरूम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्वायम. तो स्वायम स्कीम जो है वो क्या है, गवर्नमेंट का स्कीम था ये स्वायम स्कीम, और ये किस लिए जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल
program to achieve the principle of education, online platform, name of a website, and the correct answer is digital program to achieve the principle of education. तो स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं इज अ मूक दैट इज मैसिव ऑफ ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. और ये जो है वेरियस फील्ड में जो है आपको इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, इन सब में जो है क्या करता है? आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल एडजस्टमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन डेवलप इन चिल्ड्रेन व्हेन. तो चिल्ड्रेन में इस तरह की जो सिचुएशन है वो कब डेवलप हो जाता है? एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, डर रहता है, एंजाइटी होती है. तो ये कब स्टूडेंट में डेवलप होता है? दे आर ओवर पैम्पर्ड बाई ऑल, देयर नीड्स आर नॉट मेट, दे फाइट विद देयर पियर्स, दे फेल इन एग्जाम्स. एंड द करेक्ट आंसर इज देयर नीड्स आर नॉट मेट. जब उनका नीड्स जो है, जो चीज़ चाहिए उनको नहीं मिल पाती है, आप उनको उनके अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उनको समझ में नहीं आता है, तो क्या होता है? उनको एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होती है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं. डेवलप व्हेन देयर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल नीड्स आर नॉट एडिक्वेटली मेट. तो ये जब मिल नहीं पाता है तो. Next question is special education is the education which is different from the education of average student in physical, emotional or social specialties. This statement is given by. तो स्पेशल एजुकेशन जो है ऐसा एजुकेशन है जो बाकी स्टूडेंट से जो है डिफरेंट होता है. बाकी स्टूडेंट को जो आप देते हो उससे अलग तरह का एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करते हो. ये बात जो है किसने कही थी? कर्क, गलाघर, क्रो एंड क्रो, जेडी हंट. एंड द करेक्ट आंसर इज क्रो, जेडी हंट. So J.D. Hunt provided the definition of special education as the education that differs from the education of average students in a फिजिकल, इमोशनल और सोशल स्पेशलिटी. सभी में जो है थोड़ा डिफरेंट हो. स्पेशल एजुकेशन जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं मोस्टली, आप जिनको कुछ डिसेबिलिटीज वगैरह हो जाती है, उनको हम प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डिजीज एंड एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ बी इन्फ्लुएंस्ड इन द करिकुलम ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन. तो इन सब जो है ये कैसे इफेक्ट करता है हेल्थ और में करिकुलम में फिजिकल एजुकेशन कैसे आपको हेल्प करता है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फ्रॉम प्राइमरी क्लासेस, टेक्स्ट लेसन्स ऑन सेकेंडरी लेवल ओनली, फिजिकल एक्टिविटीज. तो कब जो है इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए? सो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फ्रॉम प्राइमरी क्लासेस. द कंसर्न रिलेटेड टू हेल्थ, न्यूट्रिशन, डिजीज एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द child therefore need to be part of curriculum on health and physical education from the primary level से होना चाहिए, शुरू से होना चाहिए. ये हेल्थ को लेकर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हेल्थ इज वेल्थ हम सुनते आते हैं, तो जब तक हेल्थ नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और इससे जो है जब प्राइमरी लेवल से इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो डेवलप होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशनल टीवी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर. तो एजुकेशनल टीवी सबसे पहली बार इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? और इससे क्या है कि एजुकेशन को लेकर जो है टेलीविजन पर प्रोग्राम लाया गया था एजुकेट करने के लिए. सो 1959, 1961, 1960, 1958 एंड द करेक्ट आंसर इज 1959. So television began in India in 1959 as an educational project supported by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization that is UNESCO and the Ford Foundation ने मिलकर जो है ये एजुकेशनल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1959 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग हुज डेफिनेशन इज दिस. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है एक साइकोलॉजी का ब्रांच है और टीचिंग और लर्निंग को डील करता है. ये डेफिनेशन किसने दिया था? स्किनर, क्रो एंड क्रो, गेट्स, सोरेनसन. एंड द करेक्ट आंसर इज स्किनर. सो BF स्किनर, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग. ये बात इन्होंने कही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि इज टीचिंग ड्रामा टू हिज यंग स्टूडेंट्स बाय यूजिंग ड्रामा. रवि इज हेल्पिंग हिज स्टूडेंट. तो रवि जो है एक ड्रामा स्किट जो है वो सिखा रहा है बच्चों को. तो इसका मतलब क्या है? ड्रामा से वो क्या सिखा रहा है? डेवलप देयर डायलॉग राइटिंग कॉम्पिटेंसी, डेवलप देयर कॉम्पिटेंसी टू रीड ड्रामास, डेवलप देयर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी, डेवलप देयर एक्टिंग टैलेंट. एंड द करेक्ट आंसर इज डेवलप देयर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी. So using drama as a teaching tool can significantly enhance the student communicative competencies जो है वो बढ़ाता है स्टूडेंट का जो है. ड्रामा के थ्रू जो है बहुत कुछ स्टूडेंट सीख सकता है. कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है वो स्टूडेंट में आ सकता है. So let's move on to the next question. And the next question is which among the following is not a common evaluation methods. इसमें से जो है कौन एक common evaluation method नहीं है? Quizzes, doubts, polls, interviews. And the correct answer is doubts.
So the evaluation of teaching can serve a variety of reasons such as gathering feedback for teaching improvement, creating a portfolio for job application। तो क्विज से जो है आप इवेलुएट करते हो, क्विज वगैरह पूछ के पोल्स कंडक्ट करवाते हो, उसके बारे में लेते हो जानकारी कि क्या जो है कितना अचीव कर पाया। इंटरव्यू के थ्रू भी जो है आप रैंकिंग देते हो, इंटरव्यू से ग्रेड देते हो, नंबर देते हो। डाउट्स जो है स्टूडेंट खुद पूछते हैं और उसको आप क्लियर करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनलाइन टीचिंग इज फ्लेक्सिबल बिकॉज। तो ऑनलाइन टीचिंग फ्लेक्सिबल क्यों है, किस वजह से? स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर ओन पेस, स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, student can learn from a teacher who is miles away, all of the above, and the correct answer is all of the above. So they enable communication with larger groups with video conferencing, instant messaging, audio calls, virtual rooms and more with any device and from anywhere। तो कहीं से भी आप जुड़ सकते हो। जैसे अभी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू जो है आपको पढ़ा रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये क्या है कि ये एक ऑनलाइन कोर्सेज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ऑनलाइन टीचिंग का, कि किस तरह से जो है आप घर बैठे अपने कहीं से भी इस चीज का ये कर सकते हो, बेनिफिट उठा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो ये जो है इग्नू, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? डिस्टेंट लर्निंग के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, ओपन लर्निंग के लिए। तो ये जो है आपको इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1982, 1985, 1996, 1992, and the correct answer is 1985. So IGNOU was established in the year 1985 by an act of parliament. It is named after the former prime minister of India. इंदिरा गांधी के नाम पर जो है ये इग्नू यूनिवर्सिटी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग propounded the philosophy of अष्टांगिका मार्ग, the eightfold path। तो अष्टांगिका मार्ग जो है, eightfold path जो है, आप किस तरह से जो है इस फिलोसफी को किसने दिया था, प्रोपाउंड किया था? शंकराचार्य, महावीर स्वामी, रामानुजा, गौतम बुद्ध। And the correct answer is Gautam Buddha. So the idea of the eightfold path appears in what's considered the primary sermon of the founding father of Buddhism, Siddhartha Gautam, referred to as Buddha। तो इन्होंने ही ये कहा था अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करने के लिए राइट नॉलेज, राइट एक्शन, राइट कंडक्ट, राइट कैरेक्टर, ये सारी चीजें क्या है, ये अष्टांगिका मार्ग का आपका पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले और प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज इन अ चाइल्ड। तो एक बच्चे के मोरल वैल्यू को डेवलपमेंट के लिए कौन सा फैक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज क्रूशियल हो जाता है? पीरियड असेंबली, प्रॉपर सोशलाइजेशन, इंटेलेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर राइट, एंड द करेक्ट आंसर आर ऑल ऑप्शंस आर राइट। So factor play important role in moral development. There are many factors like a school environment, social, home environment and cognition that play an important role in moral development of a child। तो सारी चीजें जो है आप सोशलाइज होगा, इंटेलेक्ट होगा, पीरियड असेंबली, ये सबसे क्या है कि बच्चे का जो है एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है और मोरल वैल्यूज को वो बिल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का दूसरा नाम नहीं है, इनमें से कौन जो है ऐसा है जो एडोलेसेंस का सेकंड नाम नहीं है? ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, प्रॉब्लम एज, स्टेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टॉर्म, स्मार्ट एज, एंड द करेक्ट आंसर इज स्मार्ट एज। So the development of human being is divided into three different stages: infancy, early childhood, late childhood, adolescence and adulthood। तो ये जो ट्रांजिशन फेज है ही चाइल्डहुड से एडल्टहुड पे जो आते हैं उसको कहते हैं हम एडोलेसेंस। प्रॉब्लम एज है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है इस एज में, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करना होता है एज ए स्टूडेंट लाइफ आप जीते हो। स्ट्रेस और स्ट्रेन बहुत तरह की चीज़ें होती है, एंजाइटी वगैरह होता रहता है, लेकिन स्मार्ट नहीं होते, आप जो है डिसीजन वगैरह बहुत अच्छे से नहीं ले पाते हैं, स्मार्टनेस हमारे में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल बिकॉज। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है आपको स्कूल में क्यों सिखाया जाना चाहिए? वाई? इट विल अफेक्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, इट विल प्रोवाइड जॉब टू टीचर्स, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम एनवायरमेंट, एंड द करेक्ट आंसर इज it is important part of life. So environmental education helps a student understand how their decision action affect the environment। किस तरह से आप जो है आपके एक्शन से environment को फर्क पड़ेगा, environment डिग्रेड होगा, पॉल्यूशन क्रिएट होगा, कैसे आप रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करोगे जिससे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सको, सस्टेनेबल यूज ऑफ एनवायरनमेंट कर सको, ये सारी चीजें जो है इसी से आता है अगर एनवायरमेंटल एजुकेशन आपको जो है दिया जाएगा स्कूल में तभी। और ये जो है आपको आर्टिकल 21 में भी है कि आपका जो है 21 आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है कि जो क्लीन एनवायरनमेंट है वो आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मेंटेन इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन क्लास अ टीचर शुड। तो बच्चों को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, अटेंटिव रहने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए?
use blackboard, discuss, tell stories, ask question. And the correct answer is ask question. To maintain interest among students in a class, a teacher should ask question. क्वेश्चन पूछने से क्या होगा कि बच्चों को लगेगा कि हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम वो अटेंटिव रहेंगे, उन्हें लगेगा कि हो सकता है ये जो आगे जो पढ़ा रहे हैं मुझसे फिर क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं उसका आंसर दे पाऊँ. सो वो अटेंटिव रहेंगे, तो क्वेश्चन बीच बीच में पूछते रहना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड अ स्टूडेंट नॉट बी पनिश्ड सिवियरली. एक स्टूडेंट को बहुत सिवियरली जो है पनिश नहीं करना चाहिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट वगैरह से बचना चाहिए, ऐसा क्यों है? ही मे क्वारल विथ टीचर, ही मे लीव द स्कूल एंड ज्वाइन अनदर, हिज पेरेंट मे क्वारल विथ टीचर, द स्टूडेंट मे डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज स्टडीज, टीचर एंड स्कूल. एंड द करेक्ट आंसर इज द स्टूडेंट मे डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज स्टडीज, टीचर एंड स्कूल. A student should not be punished severely because it can negatively impact their learning attitude, damage their self-esteem, strain the teacher-student relationship. ये सारी चीज़ें जो है उसमें नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो देखने को मिल सकता है. स्टडी के लिए जो है वो ज़्यादा जी नहीं दिखाएगा, अटेंटिव नहीं रहेगा, आपको बोर्ड फील करेगा, हो सकता है एंजाइटी वगैरह हो जाए. तो इन सब का जो है वो इन सब चीज़ों की वजह से जो है बहुत सीवियरली जो है पनिश नहीं करना चाहिए. So these are the most important questions from teaching aptitude we have discussed in this session. If you guys have any queries, you can write in the comment section. Hope you guys have enjoyed the session well. So do like and subscribe this channel. With that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.